Hello students. In the last video we saw all about the vegetative parts of the flowering plant. तो क्या बच गया? The reproductive part, which is what? The flower, right? So let's begin this video by taking a look at flower. Now ये क्या है हमारा? दिस इज शूट एपिकल मेरिस्टम और सैम. When this SAM decides कि मुझे फ्लावर बनना है, what happens is that this transforms to floral meristem. Okay? If this transforms to floral meristem and develops into a flower, it gives rise to a solitary flower. Okay? या तो फिर this can differentiate as an inflorescence meristem. मतलब क्या कि here the shoot will continue to grow for some time, but it will not, then it will give rise to flowers. Okay? If it becomes then there can be two types of inflorescence. Now what is inflorescence? Inflorescence is nothing but the arrangement of flowers. तो flower क्या हो सकता है? Solitary, हमेशा one flower at one point at one time, या तो फिर bunch of flowers at a place at one time, right? That is called inflorescence. So depending on how it grows, उसके भी दो type हो सकते हैं. The first type is racemose, where floral axis continues to grow, right? और दूसरा है cymose. इसमें क्या? Floral axis is growing and flowers are born in acropetal से fashion. Acropetal मतलब क्या? पुराने वाले फ्लावर नीचे और नए वाले फ्लावर ऊपर. और वहीं यहीं पे क्या होता है? फ्लावर्स आर बोर्न इन बेसिपेटल मैनर. फ्लोरल एक्सिस सीजेस टू ग्रो, मतलब फ्लोरल एक्सिस जो है वो ग्रो करना बंद कर देता है. इट टर्मिनेट्स इनटू अ फ्लावर और साइड बाय साइड फ्लावर होते रहता है. टर्मिनेट्स फ्लावर्स आर बोर्न बेसिपेटली, मतलब जो नए फ्लावर्स हैं वो नीचे और पुराने फ्लावर्स ऊपर. सो इफ दिस इज द फ्लोरल एक्सिस, इट टर्मिनेट्स इनटू अ फ्लावर. तो सबसे पुराना यही हो गया, फिर नया यहाँ, उसके बाद यहाँ, इसके बाद यहाँ. सो दिस इज व्हाट एन एक्रोपेटल अरेंजमेंट लुक्स लाइक. एक्रोपेटल यूं, ओके, फ्रॉम ओल्ड टू न्यू. Or this is what a basipetal looks like, from new to old, right? So flower अब जब भी हमें plant पे देखने को मिलेगा, its arrangement is going to be what? Either a solitary or a racemose or cymose inflorescence. So arrangement of flower. So let me wipe and then write for you. Is going to be of three types: solitary, racemose या cymose. Clear है? तो what changes in the meristem when it changes from a SAM to a floral meristem? या a shoot meristem
शूट एपिकल मेरिस्टम से फ्लोरल मेरिस्टम पे होता है. So usually in a shoot apical meristem में क्या होगा? This is the meristem. It continues to grow upwards and bears nodes, internodes. जैसे ही SAM becomes FM, SAM becomes FM. ये सारे के सारे internodes condense हो जाते हैं. So this राइट, ये चपटे हो गए और एक एक नोड से एक एक फ्लोरल अपेंडेजेस निकलते हैं. सो दीज टू फ्रॉम आउटवर्ड्स टू इनवर्ड्स इफ वी गो, सबसे नीचे वाला होल्ड इज कैलिक्स, उसके ऊपर है कोरोला. लेट मी ड्रॉ थोड़ा बड़ा करके. जैसे ही ये दिस बिकम्स कैलिक्स, this becomes corolla. इन दोनों होल्ड्स को क्या कहा जाता है? इन दोनों होल्ड्स को नॉन एसेंशियल या एक्सेसरी होल्ड कहा जाता है. फिर ऊपर वाला होल्ड इज एंड्रोएशियम. And this one is gynoecium. Okay? Now the purpose of flower is to reproduce. तो उन चार होल्ड में से these two are the most important. इन्हीं से reproduction होगा. So they are called, referred to as the essential or reproductive hold. Now we will start looking into a flower. पहले हम उसके general features देखेंगे, what can we see from outside, and then we will study the individual holes या individual appendages. ठीक है? तो ये हो गए इनके चार, 1 2 3 4. Right? और जैसे जैसे हम देखेंगे, I'll also give you the tip to how to incorporate them into a floral formula. So whenever we see a flower, सबसे पहले हमें क्या नजर आता है? The geometry of the flower, right? Now यहाँ पे हमने 3 flowers लिए हैं. If we try to cut it in any direction with any plane, वो radial plane किसी भी तरफ से, radial plane means what? एक radius. किसी भी डायरेक्शन में काटे, it cuts it into two equal halves. Then it is called actinomorphic. One second. इसमें से only one radial half in one direction, sorry, one radial plane in इसमें से only one radial plane in one direction cuts it into two equal halves. It is called zygomorphic. And this one, whether we cut it this way या this way या this way या this way, equal halves किसी भी direction से नहीं होता. Such a flower is called asymmetric flower. Okay, so from now what do we have from the geometry point of view? Actinomorphic, उसको हम floral formula में कैसे समझाते हैं? One circle and two radial planes. This indicates that it can be cut equally into two halves in any direction. Zygomorphic with a percentage sign. Clear? सबसे पहली बार जब भी हम फ्लावर को देखेंगे, हम उसको हमेशा बाहर से देखते हैं, राइट? द फर्स्ट थिंग इन द फ्लोरल फॉर्मूला दैट विल गो इज द ज्योमेट्री. तो इफ इट हैपेंस टू बी एन एक्टिनोमॉर्फिक, हम ये साइन देंगे. अगर ज़ाइगोमॉर्फिक होता है तो ये साइन. कीप ऑल दिस पॉइंट्स इन माइंड. ओके, नाउ द नेक्स्ट थिंग दैट वी सी इन अ फ्लावर इज इट्स सेक्सुअलिटी.
तो सबसे पहले हमने अब तक क्या देख लिया, एक्टिनोमॉर्फिक या जाइगोमॉर्फिक। ओके, मैं लेट मी डू वन थिंग, एक यहाँ लिखती हूँ, एक यहाँ लिखती हूँ। नाउ कम्स द नेक्स्ट पार्ट, सेक्सुअलिटी। Now a flower can either be unisexual या bisexual. Unisexual या bisexual symbols क्या क्या होते हैं? If it is a female flower, this is how you denote. If it is a male flower, this is how you denote. And if it is bisexual, join both the sides, this becomes a bisexual. तो जब हम फ्लोरल फॉर्मूला लिखते हैं आफ्टर द शेप व्हाट गोज इन, वो यूनिसेक्सुअल है या बाइसेक्सुअल है। सो लेट्स अज्यूम कि इधर वाला यूनिसेक्सुअल है, तो लेट मी पुट फीमेल साइन है, सॉरी मेल साइन है। ओके, और लेट्स अज्यूम दिस इज बाइसेक्सुअल, तो ये हो गया। फिर मेनी टाइम्स यू विल ऑब्जर्व कि ये एक फ्लावर है, यहाँ पे एक ब्रैक्ट होता है, राइट? नॉट ऑल फ्लावर्स हैव अ ब्रैक्ट, इट मे हैव अ ब्रैक्ट, इट मे नॉट। इफ द फ्लावर हैज अ ब्रैक्ट देन इट इज कॉल्ड अ ब्रैक्टिएट फ्लावर। इफ इट डज नॉट हैव a bract, it is called ebracteate. क्लियर है? Now floral formula में one thing ये सबसे पहले जाता है because ये flower से भी पहले नजर आ जाता है। Okay, so let's assume ये bracteate है, तो we put bracteate। अगर ebracteate है then you may write EBR or you may not write it, anything, both are correct। Okay, so now let's begin with the floral appendages। So when we talk of calyx and corolla, usually flowers are seen to have them either in terms of 3, 4 and 5 or in their multiples. So 3, 4 or 5 or accordingly they are named trimerous. Example is lily. 4 tetramerous. Example हम क्या ले लें? 4 कोई सा भी ब्रेसिकेसी फैमिली वाला हो या क्रूसिफेरी, that family goes by both the names, such as mustard, या 5 हो गया तो पेंटामेरस। पेंटामेरस के बहुत सारे एग्जाम्पल्स हो सकते हैं। वन सच एग्जाम्पल कैन बी चाइना रोज या द मेंबर्स ऑफ फ्लावर्स ऑफ सोलानेसी फैमिली। क्लियर है? So far so good. Now let us begin with individual whorls, calyx and corolla. तो ये क्या है? This is the thalamus, right? और सारे के सारे whorls are born on this. So the green outermost hole, which is green in color, green outermost hole is collectively called calyx, right? और इनके इंडिविजुअल मेंबर्स को क्या बोलते हैं? सेपल्स। व्हाट इज देयर जॉब, फंक्शन क्या है? व्हाट डू दे प्रोटेक्ट? द बड, राइट? कली को सबसे पहले आप ग्रीन देखते हैं, फिर धीरे धीरे जैसे वो बड़ा होता है तो कैलिक्स कम्स डाउनवर्ड्स।
and they can be in two forms. या तो फिर the all the members are fused, या तो फिर they can be free. Clear? So if it is fused, then gamosepalous if it is free, then polysepalous. Now let us come towards corolla. Okay, तो कैलिक्स को फ्लोरल फॉर्मूला में कैसे डिनोट करते हैं? विद द लेटर के. सो लेट्स अज्यूम यहाँ पे नेक्स्ट हम क्या लिखेंगे? के. डिपेंड्स ऑन फ्लावर. फिर के मीन्स कैलिक्स, उसके बाद क्या? द नंबर. सो लेट्स अज्यूम हम नंबर 5 दे रहे हैं. आवर फ्लावर हैज 5 मेंबर्स एंड लेट्स अज्यूम यहाँ पे ये फ्यूज्ड है, गैमोसेपलस है. सो वी पुट अ ब्रैकेट और यहीं पे लेट अस अज्यूम कि उसके मेंबर्स आर 5 but they are free, so we don't put the bracket. Clear? Now corolla. Corolla is the second whole colorful individual members are called petals. Their job is to function attract insects. They can also be fused. In that case they are called gamopetalous. Clear? Gamo means एक साथ, petalous means the petals. Yeah, they can be free. Polypetalous. कोरोला को कैसे डिनोट किया जाता है? इन द फ्लोरल फॉर्मूला विद द लेटर सी. सो अब यहाँ पे व्हाट विल बी द नेक्स्ट थिंग? इट विल बी सी. ब्रैकेट दे देते हैं. इसमें भी लेट्स अज्यूम कि इट इज अ पेंटामेरस फ्लावर एंड पेटल्स आर फ्यूज्ड. सो वी हैव पुट अ ब्रैकेट. इसमें लेट अस अज्यूम एवरीथिंग इज फ्री, तो नो ब्रैकेट. सो फार सो गुड. अगर समझ में आ रहा है तो जिन बच्चों ने अब तक लाइक नहीं किया, प्लीज गिव अ लाइक राइट नाउ. ओके. नाउ व्हाट हैपेंस इन मेनी फ्लावर्स, कोरोला और कैलिक्स में डिफरेंशिएशन नहीं कर सकते हम. द होल्स दे लुक द सेम. इन दैट केस इट इज रेफर्ड टू एज पेरिया. तो इसमें सारे के सारे मेंबर्स आर इक्वल, सेम कलर्ड, and individual members are called here tepals. It is denoted by the letter P. Where do we see perianth? A very common example is the family Liliaceae. Clear है? So what have we seen so far? Accessory holes is calyx, corolla or perianth. Clear? P, ये K, ये C. Sepals, petals and tepals. लिख देती हूँ. हो गया. तो कैलिक्स कोरोला का और एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है विच इज देयर एस्टिवेशन, लाइक हाउ आर दे अरेंज्ड. ओके, इंडिविजुअल मेंबर्स हाउ आर दे अरेंज्ड एंड दैट इज कॉल्ड एस्टिवेशन. तो किस किस टाइप के होते हैं? लेट्स सी हियर. फर्स्ट इज वेलवेट. वेलवेट मतलब क्या? एक बिल्कुल साइड बाय साइड अरेंजमेंट है. द मार्जिन्स आर लाइंग नेक्स्ट टू ईच अदर. कहाँ देखने को मिलता है? कैलोट्रोपिस. ट्विस्टेड, यहाँ पे ये जो इंडिविजुअल मेंबर है इनका पूरा अरेंजमेंट ट्विस्टेड होता है, विच मीन्स व्हाट? एक तरफ मार्जिन इनका घुसा हुआ, दूसरा तरफ निकला हुआ. इसका अंदर एक मार्जिन अंदर, एक बाहर, एक अंदर एक बाहर, ऐसे. ये चाइना रोज, लेडीज फिंगर यानी भिंडी,
या ओकरा, कॉटन में हमें देखने को मिलता है। देन कम्स इम्ब्रिकेट। इम्ब्रिकेट मीन्स व्हाट, यहाँ पे कोई ट्विस्टेड हो या साइड बाय साइड हो, जो भी है इसका कुछ पैटर्न स्पेसिफिक नहीं होता। जैसे हम देख लें, एक पूरा अंदर है, एक ट्विस्टेड है, दूसरा भी ट्विस्टेड है, एक पूरा बाहर है। इट डज नॉट फॉलो अ पैटर्न। इम्ब्रिकेट केसिया गुलमोहर में देखने को मिलता है। दिस वन इज वेरी इंटरेस्टिंग, और इसके लिए यू ऑलवेज नीड 5 पेटल्स। सबसे पहला वाला, इट इज कॉल्ड सबसे बड़ा वाला स्टैंडर्ड। ये बाकी दो साइड में दो पेटल्स को घेर के रखते हैं, दे आर कॉल्ड विंग्स। लेट मी कम दिस साइड, दिस इज स्टैंडर्ड, ये है विंग्स, ये 2 इन नंबर, ये 1, और ये जो है these are 2 fused smallest और they are fused, they are called केल। ओके, तो इनका फ्लोरल फॉर्मूला कैसा हो जाएगा, 1 + 2 + 2। क्लियर? और इसको वेक्सिलरी एस्टिवेशन बोलते हैं या पेपिलोनेशियस एस्टिवेशन भी बोलते हैं। इट इज सीन इन पी एंड मेनी मेंबर्स ऑफ फैबेसी फैमिली। और ये एक ऐसा एस्टिवेशन है जिसमें कि फ्री एंड फ्यूज्ड दोनों देखने को मिलता है एट द सेम टाइम। इसमें हमेशा 5 पेटल्स ही चाहिए होता है। वेलवेट 4 में भी देखने को मिल सकता है, 5 में भी देखने को मिल सकता है। सेम फॉर ट्विस्टेड ऑल्सो, बट फॉर दिस प्लीज रिमेंबर 5 इज नेसेसरी। और क्या, 1 + 2 + 2 फ्री एंड फ्यूज्ड एक ही सब एक ही होल्ड में हमें देखने को मिलता है। ओके, सो आई थिंक विद दिस वी आर डन विद ऑल द एस्पेक्ट्स ऑफ द एक्सेसरी होल्ड्स ऑफ द फ्लावर। इसके बाद रिप्रोडक्टिव होल्ड्स को देखते हैं। तो मेन रिप्रोडक्टिव होल्ड क्या, इट इज collective name is androecium, individual members are called stamens, and in a floral formula it is denoted by the letter A। clear है? basic structure of a stamen क्या होता है, this is the thalamus। okay, thalamus से एक filament, a thin tube-like structure, ऊपर anther। anther is usually bilobed, सबसे मोस्टली बाइलोब्ड ही होता है, बट इट कैन बी यूनिलोब्ड आल्सो इन सम स्पीशीज। और इसके अंदर क्या रहता है, पोलन सैक्स। पोलन सैक्स के अंदर पोलन ग्रेन्स, राइट। सो दिस इज द, अगेन मैं फिर से रिपीट कर दे रही हूँ, दिस इज द प्रॉक्सिमल एंड ऑफ फिलामेंट, दिस इज द डिस्टल एंड। एंथर कहाँ है, एंथर इज एट द डिस्टल एंड ऑफ द फिलामेंट। हमेशा याद रखना, जब भी फ्लावर डिस्क्राइब कर रहे हैं, ऑलवेज रेफर इट विद फ्रॉम द थैलेमस, हमारे आंखों से नहीं कि इट इज प्रॉक्सिमल टू आवर आई, तो इट इज एट द प्रॉक्सिमल एंड ऑफ द फिलामेंट। प्लीज डू नॉट डू दिस मिस्टेक, इट इज एट द डिस्टल एंड ऑफ द फिलामेंट। क्लियर है? नाउ दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ अ fertile stamen. If it happens to be sterile, it is called a staminode. कैसे होगा, या तो वो अंडर डेवलप्ड होगा, या अगर डेवलप होता भी है अपरेंटली फंक्शनल पोलन ग्रेन्स उसमें नहीं होंगे। ओके, नाउ ये जो एंड्रोइशियम या स्टेमन है, इट कैन बी फ्री या इट कैन बी फ्यूज्ड। उस और एक बात है, दे कैन बी समटाइम्स अटैच्ड टू द कोरोला या द पेटल्स। So if it is attached to the petal, it is called epipetalous. Okay? Now, and इसके बाद फ्लोरल फॉर्मूला का हम क्या करेंगे, यहाँ पे A लिख देंगे, right? Followed by the number of stamens that you count. Say for example, यहाँ पे भी हमने 5 काउंट कर लिया, and let's assume कि वो सारे के सारे fused हैं, तो we will put a bracket and let's assume कि यहाँ पे ये epipetalous है, मतलब कोरोला से लगा हुआ है, then we'll just put a line। क्लियर है? और यहाँ पे सारे के सारे फ्री ही हम assume कर रहे हैं, तो it will be A and 5। okay, now one thing very important for you to learn is the degree of fusion।
क्योंकि ये वेरिंग डिग्री ऑफ फ्यूजन्स दिखाते हैं, और कहीं पे ये फिलामेंट से सिर्फ जुड़े रहते हैं, कहीं पे ये विद एंथर्स जुड़े रहते हैं, कहीं पे पूरे का पूरा एंथर एंड फिलामेंट एक साथ जुड़ा रहता है. सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. लेट अस सी इनटू द फ्यूजन या फ्यूजन ऑफ स्टेमन्स. ओके, तो स्टेमन्स कैसे कैसे फ्यूज होते हैं, लेट अस लुक. फर्स्ट लेट्स लुक इफ दे आर फ्री. दे आर फ्री तो हर जगह पे यू आर सीइंग इन द नेम पॉली ऐड हो जाता है, लाइक पॉलीसेपेलस, पॉलीपेटलस. तो यहाँ पे पॉलीएंड्रस. अगर फ्यूज्ड है तो गैमोएंड्रस. नाउ गैमोएंड्रस कैन बी फर्दर डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरीज. तो पहला वाला है इफ दे आर फ्यूज्ड बाय द फिलामेंट्स. फिलामेंट्स नीचे के सारे फ्यूज्ड है, ऊपर के एंथर्स खाली है या फ्री है. फर्स्ट इज मोनाडेल्फस. मोनाडेल्फस मतलब क्या, सारे के सारे फिलामेंट्स ज्वाइन करके एक ही बंडल फॉर्म कर रहे हैं. ओके. डाइएडल्फस मतलब कि सारे के सारे ऑल बट वन, या 2 बंडल भी हो सकता है. डाइएडल्फस मीन्स व्हाट, 2 बंडल्स. यहाँ पे वी गेट टू सी इट इन पी, और इसका एग्जाम्पल है चाइना रोज. सारे के सारे फिलामेंट्स आर फ्यूजिंग टुगेदर. यहाँ पे इसका एक्चुअली फॉर्मूला फॉर पी इट इज 9 + 1. 9 फिलामेंट्स आर जॉइंट टुगेदर, एक अलग रह जाता है. बट इन सम अदर स्पीशीज यू कैन सी लाइक 4 + 4 या 5 + 4, ऐसा भी हो सकता है. ओके. देन पॉलीएडल्फस. साइट्रस में देखने को मिलता है. Many anthers, many stamens are there and many bundles are formed. Clear है? फिर आते हैं if they are fused by the anthers. Here filaments are free, anthers are fused. मतलब खाली ऊपर का फ्यूज है, नीचे के सारे फ्री है. उन्हें सिनैंथरस कहा जाता है, या सिनजेनेशियस. ओके. We get to see it in sunflower. वो यहाँ पे अंदर गाइनेशियम को घेरे रखते हैं. ओके. The anthers are all fused and filaments are free. If you see the diagram. फिर anthers and filaments सारे के सारे ही fused है. वो हमें क्यूकरबिटा में देखने को मिलता है. That is called synandrous. This is synandrous and this is synantherous. Please keep the differences in name clear in your head. Okay. So with this we are done with the different type of fusion that we get to see in anthers. इसके अलावा एंथर्स कैन बी ऑफ अनइक्वल हाइट्स. सारे के सारे एक हाइट के नहीं होते. इफ दे वेर इन मस्टर्ड एंड इन क्या है एग्जाम्पल आपके बुक में, सैल्विया, स्टेमन्स आर ऑफ अनइक्वल हाइट. वहाँ पे कोई फ्यूजन नहीं है, बट दैट इज अनदर पॉइंट. सो लेट्स पुट अ हियर मस्टर्ड एंड सैल्विया. Clear है? So if we say 5 or fused है, this means what? अगर if they are fused by filament, एक ही बंडल वहां पे हो रहा है. ओके. अगर हम ये P के लिए लिखते तो पता है क्या होता, इसका यहाँ पे 9 हो जाता +1 हो जाता, 1 फ्री हो जाता. ओके. बट लेट्स स्टिक टू जो भी हम लिख रहे हैं. Okay. So please tell me in the comment section बच्चों, क्या आपको समझ आ रहा है? Are you liking this approach कि मैं जैसे जैसे फ्लोरल अपेंडेजेस, फ्लोरल होल्स पढ़ाते जा रही हूँ, वैसे वैसे फ्लोरल फॉर्मूला में भी इनकॉर्पोरेट कर रही हूँ. प्लीज लेट मी नो इफ इट इज मेकिंग थिंग्स इजियर फॉर यू और नॉट. ओके. तो इसके अलावा और क्या दिया हुआ है इन एंथर्स, स्टेमन्स और या एपिपेटलस तो ब्रिंजल में देखने को मिलता है, वो हमने यहाँ पे ऑलरेडी कर लिया है. लिली पेरियान से भी लगे हुए हो सकते हैं, दैट वी गेट टू सी इन लिली. विद दिस वी आर डन विद ऑल द थिंग्स दैट आर गिवन इन योर सिलेबस फॉर एम्ब्रियोशियम. इसके बाद द मेन इज गाइनोएशियम. हम गाइनोएशियम को देखते हैं. ओके. द इनरमोस्ट, द फाइनल रिप्रोडक्टिव होल्ड ऑफ फ्लावर्स, वो क्या है? गाइनोएशियम. तो गाइनोएशियम इज अगेन द कलेक्टिव नेम. इंडिविजुअल मेंबर्स को क्या बोलते हैं? कार्पल. तो कार्पल इज कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट्स. सबसे ऊपर स्टिग्मा, पोलन ग्रेन्स आके यहीं पे ड्रॉप होते हैं, राइट? दिस इज द रिसीविंग एंड फॉर फॉर द पोलन ग्रेन्स. फिर नीचे एक स्वोलन पार्ट है जिसे ओवरी बोलते हैं, और बीच में जो थिन फिलामेंटस हॉलो,
ये हमेशा हॉलो होते हैं बिकॉज पोलन ट्यूब हैज टू गो थ्रू, राइट? या अगर टिश्यू भी हो तो इट्स वेरी गोइंग टू बी लूज, इट इज कॉल्ड स्टाइल। और ओवरी के अंदर ये क्या है? ओव्यूल्स है, राइट? तो ये हो गया द स्ट्रक्चर ऑफ अ कार्पेल। नाउ दिस कार्पेल्स कैन ऑल्सो बी ईदर फ्री, अगर फ्री है तो एपोकार्पस, एग्जाम्पल इज लोटस एंड चाइना रोज, या दे आर फ्यूज्ड, मस्टर्ड या टोमेटो। ओके, वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ gynoecium, position of ovary with respect to rest of the holes and the thalamus of the flower. Okay? तो पोजीशन ऑफ द ओवरी में, ओवरी को हम सुपीरियर कब बोलते हैं? प्लीज रेफर टू दिस डायग्राम एंड आई एम गोइंग टू टेल यू हाउ टू डिस्क्रिमिनेट लुकिंग एट द डायग्राम, बिकॉज ज़रूरी नहीं कि जो डायग्राम आपके बुक में दिया हुआ हूबहू आप खाली उसी को याद कर ले बिना सर पैर समझे। सो दिस इज अ वेरी रफ डायग्राम बट आई एम गोइंग टू टेल यू। ओवरी सुपीरियर डायग्राम में देख के कैसे पता चलेगा? दिस इज द थैलेमस, प्लीज फोकस हियर। थैलेमस में डू यू सी ओवरी सबसे ऊपर है। दिस पॉइंट ऑफ अटैचमेंट ऑफ एंथर, कोरोला एंड कैलिक्स इज बिलो द ओवरी, ये यहाँ नीचे अटैच हो रहा है। सो दिस इज सुपीरियर, महारानी सुपीरियर है, सबसे ऊपर है। अब सबसे ऊपर अगर महारानी है तो फ्लावर इज गोइंग टू बी हाइपोगाइनस। हाइपो मतलब क्या? नीचे, या हाइपो मतलब लो भी होता है, राइट? गाइनस मीन्स द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, इट रेफर्स टू दैट। तो उसके नीचे बाकी फ्लोरल होल्स है, फ्लावर इज कॉल्ड हाइपोगाइनस, ओवरी सुपीरियर। कहाँ देखने को मिलता है? चाइना रोज, दिस इज फ्रॉम मस्टर्ड, इसके अलावा सोलानेसी फैमिली। This is not written in your book in examples, but I am giving this to you. फिर now focus on this diagram. Do you see this is the thalamus? Ovary inferior. Ovary को inferior कब बोलेंगे? Thalamus has grown around the ovary. ये thalamus है और उसके साथ फ्यूज हो गया है। और ये जहाँ पे ओवरी खत्म हो रहा है, प्लीज फोकस हियर, वहां से ये एंथर्स, कोरोला एंड कैलिक्स आर कमिंग आउट। दैट इज, तो मतलब क्या हो गया? अब महारानी सबके नीचे आ गई। अब सबके नीचे आ गया तो फ्लावर बादशाह हो गया। सो एपी मीन्स व्हाट? एपी इज अबव समथिंग, गाइनस रेफर्स टू द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, द फ्लावर बिकम्स एपिगाइनस। क्लियर? कहाँ देखने को मिलता है? क्यूकम्बर, गुआवा, रे फ्लोरेट्स ऑफ सनफ्लावर। फिर आते हैं हाफ इंफीरियर में। इन दिस व्हाट डू यू सी? द थैलेमस ग्रोज अ बिट अराउंड द ओवरी, थोड़ा सा घेर के रखता है बट इट डज नॉट फ्यूज, कोई फ्यूजन नहीं होता यहाँ, इफ यू सी। और ये जो तीनों बाकी होल्ड्स हैं, दे आर ऑलमोस्ट एट द सेम लेवल ऑफ द ओवरी, ऑलमोस्ट, ओके, इनके ऊपर नहीं जाता। सो दैट इज हाफ इंफीरियर। तो ओवरी हाफ इंफीरियर, फ्लावर पेरिगाइनस, पेरिफेरी में है, ओके। कहाँ देखने को मिलता है? पीच, रोज एंड प्लम। इसके बाद वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ गाइनोएशियम इज प्लेसेंटेशन। अब ये ओवरी में जो ये ओव्यूल्स हैं, दीज आर द ओव्यूल्स, राइट? ओव्यूल्स कभी भी ओवरी के वॉल पे डायरेक्ट अटैच नहीं होता। There is always a cushion-like tissue between the ovary wall and point of attachment of the ovule. उस टिश्यू को प्लेसेंटा बोलते हैं, and the way these ovules are arranged, that is called placentation, and that's a very important thing. तो let me wipe this, फिर मैं प्लेसेंटेशन के बारे में बोलती हूँ, ओके? प्लेसेंटेशन में जाने से पहले, वाइप करने से पहले, आई फॉरगॉट वन थिंग। गाइनोएशियम को तो हमने अभी तक इंक्लूड किया ही नहीं है फ्लोरल फार्मूला, बिकॉज प्रेजेंटेशन का फ्लोरल फार्मूला से कुछ लेना देना नहीं होता, यहीं तक होता है। सो लेट्स सी। गाइनोएशियम है तो जी होगा,
नाउ लेट अस थिंक, इसमें 5 है या 4 कर 2 कर देते हैं, इसके गाइडेशन को कम कर देते हैं. ओके, लेट्स एज्यूम ये फ्यूज्ड है, इधर के फ्लावर में सारे के सारे चीजें फ्यूज्ड है. अब अगर ये सुपीरियर है, सो हाउ विल यू से, गद्दी पे गाइडेशन को बिठा दो. और लेट्स थिंक यहाँ पे ये G5 है एंड दे आर ऑल फ्री, तो ब्रैकेट डालने की जरूरत नहीं है, बट ओवरी इंफीरियर है, तो गद्दी को इसके सर के ऊपर बिठा दो. क्लियर? सो प्लीज लेट मी नो, इज दिस हेल्पिंग यू इन डिसिफरिंग हाउ टू राइट अ फ्लोरल फॉर्मूला? अब हम प्रेजेंटेशन देखते हैं. ओके, तो शुरू करते हैं प्रेजेंटेशन. सबसे पहला टाइप क्या है? मार्जिनल. यहाँ पे क्या होता है? लॉक्यूल मीन्स व्हाट? चेम्बर ऑफ द ओवरी. सो से फॉर एग्जाम्पल ये पेपर है, ये ओवरी है. डू यू सी दिस? ये लॉक्यूल जो है वो ऐसा फोल्ड हो जाता है ओवरी, एंड इट फॉर्म्स अ, इसे वेंचर सचर बोलते हैं. सचर मीन्स क्या? द सिलाई जो होता है ना, वैसे सरफेस. तो द चेम्बर एक्चुअली इज लाइक दिस. मटर का भी जब आप छिलेंगे, यू विल सी दैट द थिंग हैज फोल्डेड, द ओवरी चेम्बर हैज फोल्डेड, और यहाँ पे प्लेसेंटा है और इसके ऊपर मटर. सो द ओवरी फोल्ड्स और वेंट्रल तरफ प्लेसेंटा होता है. यूं, ये वेंट्रल साइड हो गया और यहाँ पे प्लेसेंटा. इज दैट क्लियर? तो जाहिर से, और ये क्या है? यूनिलॉक्यूलर, वन चेम्बर होता है. प्लेसेंटा ऑन द वेंट्रल साइड, दैट इज सीन इन पी. और फैबेसी के में भी इट्स कॉमन इन फैबेसी, दिस काइंड ऑफ प्लेसेंटेशन. फिर एक्साइल में क्या? द ओवरी इज मल्टीलॉक्यूलर. ओवरी में मल्टी चेम्बर्स होते हैं. एंड द प्लेसेंटा, दिस इज द प्लेसेंटल टिश्यू. ओके, यहाँ पे ये प्लेसेंटल टिश्यू था, यहाँ पे दिस इज द प्लेसेंटल टिश्यू. इट इज एट द सेंटर. क्लियर है? एग्जाम्पल, और उसके ऊपर ओव्यूल्स है, एंड दीज आर द चेम्बर्स. ओके, दिस इज द डिवीजन ऑफ द ओवरी लॉक्यूल. क्लियर है? चाइना रोज, लेमन यहाँ देखने को मिलता है, एंड यू कैन से इन सोलानेसी में. दिस इज वेरी कॉमन इन सोलानेसी एक्साइल. तो चिली आ जाएगा, ब्रिंजल आ जाएगा, टोमेटो आ जाएगा, यू कैन ऐड देम. टोमेटो, सोलानेसी के जो भी एग्जाम्पल्स हैं. ओके, देन कम्स पेराइटल. पेराइटल, द वर्ड मीन्स व्हाट? एट द पेरिफेरी. So here also the ovary is unilocular, means single chambered. Placenta at the periphery, और उस पे सारे से ovules है. This is the placenta. Okay, and these are the ovules. कभी कभी क्या होता है? Not the ovary wall but the placenta. It ingrows and it forms a false division या false septum, और उसको क्या बोलते हैं? रेप्लम बोलते हैं. तब अगर हम ओवरी का टीएस करते हैं तो वो लगता है कि ये मल्टीलॉक्यूलर ओवरी है, बट दैट इज नॉट द वॉल ऑफ द ओवरी, दैट इज द इनग्रोथ ऑफ द प्लेसेंटा टिश्यू. मल्टीलॉक्यूलर और फॉल्स सेप्टम में क्या है? मल्टीलॉक्यूलर, इट इज द ओवरी वॉल दैट इज ग्रोइंग एंड डिवाइडिंग द चेम्बर इनटू मल्टीपल चेम्बर्स. ओके, अगर प्लेसेंटल टिश्यू खाली इनग्रोथ होता है, दैट इज नॉट अ रियल चेम्बर. Replum, example in mustard and argemone. Mustard belongs to the family Brassicaceae या Cruciferae. दोनों एक ही फैमिली है. उसमें पूरे फैमिली में पैराइटल प्रेजेंटेशन ही मोस्टली देखने को मिलता है. Then comes free central. ये काफी हद तक एक्साइल जैसा देखने को मिलता है, देखने को लगता है, but it is not the same. Why? First of all, it is unilocular again. और इसको समझाने के लिए मैंने एक LSP of the ovary कर दिया है. यहाँ पे द प्लेसेंटा इज इन द फॉर्म ऑफ अ कलम, बेस से एक कलम जैसा होता है. दिस इज द ओवरी. ओके, तो उसका उसी का अगर टीएस काटेंगे तो बीच में ये प्लेसेंटा दिखेगा और उसके चारों तरफ ओव्यूल्स. यूनिलॉक्यूलर प्लेसेंटा कलम लाइक एट द सेंटर. कहाँ देखने को मिलता है? डायंथस एंड प्राइमरोज. नाउ
Very interesting one is basal. Here also the ovary is unilocular and this ये मोटा जो है ना, this is the placenta. और इसमें हमेशा सिंगल ओव्यूल होता है. प्लेसेंटा एट द बेस ऑलवेज सिंगल ओव्यूल, एक ही होता है. एग्जाम्पल कहाँ देखने को मिलता है? सनफ्लावर. इन अदर मेंबर्स ऑफ एस्टरेसी यू मे सी दिस, एंड इन द फैमिली पोएसी. पोएसी मतलब क्या? ये ग्रासेस, वीट, ये जो है ये वाला फैमिली. ओके, सो आई होप विद दिस प्रेजेंटेशन इज क्लियर टू यू. तो यूजुअली स्टूडेंट्स के मन में हमेशा डाउट रहता है कि व्हाट एग्जैक्टली द प्लेसेंटा इज. फॉल्स सेप्टम है तो क्या है? हु इज डिवाइडिंग, हु इज फॉर्मिंग अ यूनिलोक्यूलर या मल्टीलोक्यूलर ओवरी? I hope I have been able to clear those confusions. Okay? कि मल्टीलोक्यूलर और फॉल्स सेप्टम में फर्क क्या है. तो ओवरऑल अगर एक व्यू ले ले तो आउट ऑफ ऑल द प्रेजेंटेशन वेयर डू यू गेट टू सी अ मल्टीलोक्यूलर ओवरी? इन एक्स साइड. वेयर which presentation has only and only one ovule, that is basal. Clear? false septum या false division कहाँ देखने को मिल सकता है? पैराइटल में और वेंट्रल सचर मार्जिनल में ही हो सके. यहाँ पे डोर्सल वेंट्रल का कोई सीन ही नहीं है, ये सारे के सारे गोलाकार है. क्लियर? सो विद दिस वी आर डन विथ ऑल द थिंग्स दैट आर गिवन इन गाइनुएशन. ओके, एंड फ्लोरल फॉर्मूला भी हमने कैसे लिखते हैं वो भी हमने सीख लिया. अब बारी है फ्लोरल डायग्राम की. तो फ्लोरल डायग्राम में मैंने वही वाला फॉर्मूला लिया है जो आपके सिलेबस में है. ओके, सो लेट्स बिगिन. ना सबसे पहले हम क्या देखते हैं? इट इज एन एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर. उसके पहले कोई ब्रैक्ट दिया हुआ है? नहीं दिया हुआ है, राइट? सो हम जब ड्रॉ करेंगे वी विल स्टार्ट आवर ड्राइंग फ्रॉम द कैलिक्स लेवल. उससे पहले अगर ब्रैक्ट होता तो एक ब्रैक्ट ड्रॉ कर देते, बट वी डोंट हैव अ ब्रैक्ट हियर. सो लेट्स बिगिन विद द कैलिक्स. कैलिक्स 2+2 दिया हुआ है. तो यहाँ पे शायद कुछ स्पेशल अरेंजमेंट है. दो ऐसे हैं, ये हो गए कैलिक्स. दो बाहर दो अंदर. फिर क्या है? कोरोला. कोरोला भी 4 है. नाउ दे यहाँ पे कोई ब्रैकेट नहीं है. सो विच मीन्स व्हाट? दे आर पॉलीसेपलस. इसीलिए डू यू सी दिस मार्जिन्स और चौड़ा कर देती हूँ सो दैट इट्स क्लियर. यहाँ पे हम जोड़ेंगे नहीं. कोरोला इज 4. 1 2 3 and 4. एंड्रेशियम 2+4. यहाँ पे क्या है? पॉलीएंड्रस है या गैमोएंड्रस है? या पॉलीएंड्रस. फ्री 2 मतलब बाहर की तरफ 2. इससे क्या पता चलता है कि इट इज इन 2 होल्ड्स. फिर अंदर की तरफ 4. 1 2 3 4. गाइनुएशियम इज 2, तो यूं दिखा दो, एंड इट इज सुपीरियर. नाउ एक मेनी प्लेसेस यू विल सी कि एक डॉट यूं दिया हुआ होता है, ये फ्लोरल एक्सिस को डिनोट करने के लिए. क्लियर? नाउ लेट अस अज्यूम कि इसमें अगर एक ब्रैक्ट होता, से फॉर एग्जांपल BR होता, तो हम क्या करते? अगर एक ही होता तो यहाँ पे एक एक्स्ट्रा अपेंडेज ड्रॉ कर देते. अगर ये फ्यूज्ड होता तो इसे हम यूं लगा देते हैं. मैं इसको K4 कर देती हूँ और इसको P4 कर देती हूँ, इसको एपिपेटालस बना देती हूँ. ओके, सो 1 2 3 4 एंड इट इज फ्यूज्ड. गैमोसेपलस है, तो व्हाट विल वी डू? गैमो हो गया. कोरोला फ्री है, कोरोला को भी अब फ्यूज कर देते हैं. क्लियर है? सो दैट यू लर्न. कोरोला 1 हो गया, 2 3 4. लेट्स फ्यूज. एंड्रेशियम 4 है बट एपी है, तो
यहाँ एक, यहाँ एक, यहाँ एक, यहाँ एक। इससे एपिपेटलस कंडीशन भी पता चल जाता है और गायनोइशियम 2 है। ओके, अगर एक ब्रैक्ट है तो हम यहाँ पे एक ब्रैक्ट भी ड्रॉ कर देते हैं। इज दैट क्लियर? नाउ फ्लोरल डायग्राम को देख के क्या पता चल रहा है, यहाँ पे जैसे हमने ट्विस्टेड एस्टिवेशन दिखाया है। ओके, यहाँ पे भी ट्विस्टेड दिखाया है। से फॉर एग्जाम्पल अगर वो वेलवेट हो तो क्या हो जाएगा, कैसे करेंगे हम? 1 2 3 4। जॉइनिंग दिखाने के लिए हम खाली थोड़ा सा यूं ट्विस्ट कर देते हैं। ओके, कि ये 4 है। कोरोला भी यूं दिखा दे, 2 3 1 2 3 4। दिस इज वेलवेट। अगर इम्ब्रिकेट होता है, लेट्स थिंक इट्स इम्ब्रिकेट फ्री, तो कैसा हो जाएगा? 1 2 क्लियर? फ्यूज करना है तो जस्ट जॉइन द मार्जिन्स। तो फ्लोरल फॉर्मूला और फ्लोरल डायग्राम में फर्क एक इतना ही है कि फ्लोरल फॉर्मूला में हमें एस्टिवेशन पता नहीं चलता और लेकिन इसमें एस्टिवेशन पता चलता है और इसमें दिखाई देता है बाय कि ये सुपीरियर है या इंफीरियर है, द गायनोइशियम यहाँ पे पता नहीं चलता। ओके, सो दीज आर द डिफरेंसेस बिटवीन फ्लोरल डायग्राम एंड द फ्लोरल फॉर्मूला। सो विद दिस वी आर डन विद द फ्लावर पार्ट ऑफ योर चैप्टर। इसके बाद है फ्रूट। सो उसके लिए अलग छोटा सा वीडियो। ओके।